بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بدين القيمة والحمد لله الذي أنقذنا من الضلالة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبوة وصاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أفضل الأمة أما بعد. حضرات، یہاں کشمیر کے آج کے معاشرے میں جن صاحب نے ایک انتشار پیدا کر دیا ہے کہ جب وہ مسجد کے ممبر پر لا کر انہوں نے مٹکا بجایا، رباب لایا اور دوسری میوزک کی چیزیں لائیں، اس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں. ان صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے تو شرعی کونسل کے معزز ذمہ داران پوری طرح کوشاں ہیں، اس لیے اس وقت کی گفتگو کا خطاب ان صاحب کے متعلق نہیں ہے. البتہ چونکہ سنا گیا کہ ہزاروں انسان ان کے پیج کے فالوور بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان بھائیوں کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے اس وقت کی یہ مختصر سے گفتگو کی جا رہی ہے. حضرات، جب کہیں آگ لگتی ہے تو ابتدا میں کوشش ہونی چاہیے کہ جس مکان میں آگ لگی ہوئی ہے اسی مکان میں وہ آگ بجھ جائے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ آگ وہاں سے بجھائی نہ جا سکتی ہو تو پھر آس پاس کے مکانوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ عقل کا تقاضا بھی ہے اور انسان کا ایک بہترین تجربہ بھی ہے. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ گمراہی کا شکار ہو جائے تو اولاً تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس بھائی کو اس گمراہی سے نکالیں اور غلط فہمیاں ہوں تو دور کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اگر اس سے ملاقات نہ ہو پا رہی ہو یا وہ بات سننے کو تیار نہ ہو تو پھر دوسری بڑی ذمہ داری رہتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا امت کا کوئی طبقہ اس سے متاثر ہو کر کے گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے تو ان مسلمان بھائیوں کو سمجھایا جائے کہ اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچائیں. بے شمار مسلمان اپنی ایمان کی کمزوری، علم کی کمی، توہماتی مزاج کی بنا پر یا پھر شوق و دلچسپی کی بنا پر یہ سوچے بغیر کہ اس طرح کی گفتگو سننے سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اسی کیفیت کے ساتھ اس کی وہ باتیں سن رہے ہوں گے، اور اسی لیے جیسا کہ مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بے شمار لوگ اس کے پیج کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور انہی کی خدمت میں اس وقت یہ درخواست عرض کرنی ہے. حضرات، ہمارے لیے ہدایت کا چراغ اور صحیح راستے کی نشاندہی کرنے والا سب سے بہترین سرمایہ قرآن کریم اور حدیث رسول ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر فرمایا کہ بعض لوگ تم کو گمراہ کریں گے، ان کی اس گمراہی کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچانا. میں ان آیات مبارکہ کا اس وقت حوالہ نہ دے کر کے صرف اتنا عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ گمراہ ہوں گے اور وہ خود کو گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل سے چلا آ رہا ہے اور علماء یہود کا یہ بدترین کردار یہ رہا ہے. قرآن کریم کی آیات تو ہر مسلمان خود معلوم کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنا اور اس قرآن کریم پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. لیکن فہم قرآن کے لیے، ترجمہ قرآن کے لیے کسی مستند ترجمہ قرآن سے بدل دی جا سکتی ہے. البتہ احادیث میں سے میں جو حدیثیں اس وقت پیش کرتا ہوں، پہلی حدیث کی معروف ترین، مشہور ترین، عظیم ترین کتاب جو حضرت امام بخاری یعنی امام محمد ابن اسماعیل ابن بخاری ابن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی کتاب الجامع الصحیح، جس کو عرف عام میں بخاری شریف کہتے ہیں، اس بخاری شریف کے کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے. میں حدیث مبارک کے الفاظ سناتا ہوں. عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزله من عبادی ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا فضلوا واضلوا. اس مبارک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم دین، صحیح علم دین بندوں سے
छीन कर नहीं लेंगे, बल्कि सही उलमा दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और जब सही उलमा बाकी नहीं रहेंगे तो लोग ऐसे अफराद को जिनके पास इल्म दीन नहीं होगा, इल्म दीन से वो जाहिल होंगे, उनको अपना सरबराह बनाएंगे, दीनी सरबराह। फिर उनसे दीन पूछा जाएगा, और जब दीन उनसे पूछा जाएगा तो वो दीन सुनाएंगे और दीन के मुताबिक फतवे देंगे। वो खुद भी गुमराह होंगे और औरों को भी गुमराह करेंगे। जब किसी खित्ते में कोई ऐसा शख्स जिसने बाकायदा इल्म दीन न पढ़ा हो, जिसने बाकायदा कुरान करीम और उसकी तफसीरें न पढ़ी हों, जिसने बाकायदा हदीस और हदीस की शुरुआत न पढ़ी हों, जिसने बाकायदा फ़िक़्ह और दूसरे इस्लामी उलूम न पढ़े हों, और वह मुस्तनद साहिब इल्म न हो, और वह इल्म के मनसब पर बैठ करके फिर दीन सुनाने लगे, तो हो सकता है कि वो खुद भी गुमराह होगा और दूसरों को गुमराह करने का शिकार होगा। इसलिए हर ईमान वाले को चाहिए कि वो ये देखे कि मैं जिससे इल्म ले रहा हूँ, जिससे मैं दीन सुन रहा हूँ, वो क्या इस काबिल है कि उससे मुझे दीन सुनना होगा? क्या उसका दीन मुस्तनद है? क्या उसके अकायद सही हैं? क्या उसकी अमली ज़िंदगी दुरुस्त है? और क्या वो वही मुतारफ मुतवारिस दीन बयान कर रहा है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से सहाबा किराम से होते हुए ताबईन, तबे ताबीन, फ़ुक़हा किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, औलिया इज़ाम के तवस्सुत से हम तक पहुँचा है? ये वही दीन हमें सुना रहा है या इसमें कोई नई चीज़ पेश कर रहा है? इस हदीस का तकाजा हर मुसलमान से यही है कि वो दीन सुनने में, दीन लेने में बहुत ज़्यादा चौकन्ना और होशियार रहे। दूसरी हदीस मुबारक, जो हदीस की दूसरी अजीम शान किताब इमाम मोहम्मद इब्न मुस्लिम नशापुरी रहमतुल्लाह ताला की किताब है जामे मुस्लिम, अल जामे सही अल मुस्लिम, उसमें हदीस मौजूद है। मैं हदीस मुबारक के अल्फाज सुनाता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु बादी दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस मा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिर ज़माने में कुछ दज्जाल और झूठे मक्कार लोग पैदा होंगे। यकून फी आखिर ज़माने दज्जालून कज़्ज़ाबून के अल्फाज हैं। ऐसे लोग जो दजल करते होंगे, धोखा देते होंगे और झूठ बोलते होंगे। या तो हदीस तुम्हारे सामने ऐसी हदीसें पेश करेंगे जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने सुनी भी नहीं होगी। वह ऐसी बातें तुम्हें सुनाएंगे जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने सुनी नहीं होगी। वह ऐसी थ्योरियाँ तुम्हारे सामने लाएंगे जो तुमने तुम्हारे बाप दादों ने सुनी भी नहीं होंगी। इसमें मॉडर्न बहुत सारी थ्योरियाँ भी आ गई, इसमें झूठी अहादीस भी आ गई, और वह गलत बातें भी आ गई जो किसी भी जुबान से निकल सकती हैं, वो सारी इसमें आ गई। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम इंतबाह दे रहे हैं, चौकन्ना कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आखिरी ज़माने में एक फितना ये भी होगा कि लोग तुमको वो बातें सुनाएंगे जो तुमने इससे पहले कभी सुनी नहीं होंगी, तुमने तुम्हारे बाप दादों ने सुनी भी नहीं होंगी। फिर फरमाया फ़इय्याकुम, अपने आप उनसे बचाना, वइय्याहुम, उनसे दूर रहना, ला युदिल्लूनकुम, खबरदार वो तुमको गुमराह न करने पाएँ और तुमको किसी फितने का शिकार न बनाएं। इन दो हदीस को सामने रख करके अब गौर करें। जो शख्स ये कहता हो कि कुरान करीम की आयत खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार के माना और उसका मतलब मटका बजाना है, तो ये खुल्लम खुल्ला कुरान करीम की तहरीफ है। अल्लाह ताला शानो कुरान करीम की इस आयत में ये नहीं बयान फरमा रहे हैं कि मटका बजाना है या नहीं, वो ये बयान फरमा रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को मैंने कैसे पैदा किया और वो मिट्टी कैसी थी। जो शख्स ये कह रहा हो कि कब्र में 3 सवाल नहीं 4 सवाल होंगे और एक सवाल होगा विलायत के मुतालिक, आज तक हमने न हमारे बाप दादों ने सुना भी नहीं होगा कि कब्र के अंदर चौथा सवाल भी होगा और वो भी विलायत के मुतालिक। ये खुद साख्ता चीज़। जो शख्स ये कहता होगा कि आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म अतहर के अंदर रूह नहीं जा रही थी, फिर म्यूजिक सुना करके रूह को अंदर पहुंचाया गया, जो शख्स ये गुमराह कुन बात कह रहा हो, हालांकि न कहीं इसका किसी इस्लामी किताब में कहीं तो सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह की कोई बात होगी। इसी तरह से जो शख्स ये कहता होगा कि फ़क्र कोई ऐसी चीज़ है कि जो हर आदमी को हासिल होने वाली नहीं है, और मैं चैलेंज करता हूँ तमाम लोगों को, मुझे बताएं फ़क्र क्या चीज़ है, और इस फ़क्र को समझाने के लिए वो लोगों के डंडे भी मारता हो। गरज ये कि जो शख्स इस तरह की बातें करे और साथ में आखिर में मस्जिद में
मेंबर रसूल पर जुमे की खिताब में उसने मटका बजाया, उसने सारंगी पहुंचाने की कोशिश की, रबाब नचाया और इसी तरह से और दूसरे पर रोई वोई क्या पहुंचाया। तो जो शख्स ये कर रहा हो, हर मुसलमान समझ सकता है ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने से आज तक कभी भी किसी भी शख्सियत के ज़रिए से हम तक नहीं पहुंची हैं। तो इसलिए वो तमाम लोग जो इस साहब की ये वीडियोस देखते हैं और उसके आपके पेज से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को इससे दूर कर लें। मालूम करने पर पता ये चला कि ये वत्रहल के इलाके के रहने वाले हैं। मुझे एकदम याद आ गया कि वत्रहल वो जगह है जहां एक ज़माने में एक अदीम शान इल्मी शख्सियत पैदा हुई थी और अपने ज़माने में वो कश्मीर के मुमताज़ अहले इल्म में से थे। मेरी मुराद है हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ वत्रहली रहमतुल्लाह ताला, जो शागिर्द ख़ास थे हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला के, और हज़रत मौलाना यूसुफ साहब वत्रहली रहमतुल्लाह ताला रहमतन वासिया के साहबजादे हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब, खुशकिस्मती से मुझे उनसे शरफ़ लिक़ा भी हासिल हुआ है, और उनके अब्बा जान की यानी हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ताला और हज़रत मौलाना ताहिर साहब की दी हुई किताबें हमारे इदारे में मौजूद है, हम उनसे इस्तेफ़ादा भी करते हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसे इलाके में जहाँ इस तरह के असहाब इल्म पैदा हुए हों और वो भी सादात में से, उस इलाके में इस तरह की बात होने लगे, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। बहरहाल मेरा खिताब अपने उन तमाम भाइयों से है जो भाई इस तरह की बातें सुन रहे हैं, ये वो पेज बंद कर दें और सुनना छोड़ दें, ऐसे आदमी से मुलाकात करना बंद कर दें। और ये इसलिए अर्ज किया जा रहा है क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपने फरमाया फइयाकुम, बच कर रहना, ला युदिल्लूनकुम, खबरदार वो तुमको गुमराह न करने पाएं। मैं ताकीद के लिए इन दोनों हदीसों के मुबारक अल्फाज फिर सुना देता हूँ ताकि हर अहले ईमान को इस पर अमल करने, खास तौर पर वो भाई जो भाई इससे मुतासिर हैं या उसकी बातों को दिलचस्पी के लिए सुन रहे हैं या मुतासिर होकर के समझ रहे हैं कि कुछ न कुछ हक्कानियत इसके अंदर भी है, वो अल्लाह के नबी के मुबारक इरशादात को सामने रख करके फिर सही रास्ता इख्तियार करें। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िलुहु मिन इबादिही वलाकिन यक़बिज़ु बिक़ब्ज़िल उलमा वलाकिन यक़बिज़ुहु बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम यब्क़ आलिमन इत्तख़ज़ अन्नासु रुऊसन जुहालन फसुइलू फअफ़्तौ फदल्लू वअदल्लू। ये मुबारक हदीस बुखारी शरीफ किताबुल इल्म में है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बुखारी शरीफ के होने के माना यह है कि सनदन बिल्कुल सही और कवी तरीन हदीस है। दूसरी मुबारक हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी आख़िर ज़मान दज्जालून कद्दाबून यातूनकुम मिनल अहादीस मा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। इनके दोनों मुबारक हदीस के अल्फाज और पेश कर दिए, तर्जमा इससे पहले मैं कर चुका हूँ, और ये दोनों हदीसें पैगाम हैं उन तमाम भाइयों के लिए जो इस तरह की इस गुमराही की बात को दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह ताला शानहू सही समझ, सही फहम, सही अमल और दुनिया और आखिरत में कामयाबी वाला रास्ता हमें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।